मीन पे होते हैं, बिकॉज व्हेन यू डू योर Absolutely. जो क्लासेस आपकी होती हैं, दे आर डिफरेंट सॉर्ट, राइट? यू हैव वॉइस एंड स्पीच, यू हैव मूवमेंट, यू हैव बिल्कुल। तो डांस। आपने थिएटर में कई साल काम किया जी। और लाइक्स ऑफ ज़िया मोहिउद्दीन के साथ काम किया, ओह वो तो वाह, दैट्स लाइक अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, एब्सोल्युटली। जी उसके बाद आपने 2023 में 3 एक साथ आपकी फ़िल्में आई, जी बिल्कुल। which was quite amazing कि from 2006 to 2023 you did a bit of television work. Yes, I did 2 projects, Damsa for ARY, and before that, Nayyar Apa Ki Silai Hmm. Machine for TV1. बिल्कुल। वो एक टेलीफिल्म थी। जी। लेकिन I wasn't really working on TV much. हाँ। My family was my priority. I have 2 daughters, mashallah. So I always thought that, I have to be a mother first. Even though I was doing theater, but with theater it's different because with Zia Saab, Raz Saab, Arshad Saab, Talas Saab, all of my mentors, teachers, directors, they really, really took care of me. Yeah. I'm very thankful to them, especially Zia Saab. He not only understood my situation, which was unique, but he encouraged me. Every time I tried to quit, which was almost every semester, he would say, अच्छा अब क्या चाहिए आपको? Because every time I'll go to him, जैसा अब मुझसे नहीं होता, मेरी बेटी है घर पे, and she was only 4-5 months old when I joined. कि ये जो है ना, ये आप लॉन्ग क्लासेस रखते हैं, रिहर्सल्स रखते हैं, ये मैं नहीं कर सकती। भाई अब क्या चाहिए आपको? जैसा आप रात की क्लासेस नहीं कर So सकती। Muqabil, it's a tough field for anybody, for women yes, especially married women. जी थोड़ा सा ज़्यादा tough हो जाता है, जी and जी then married women with children थोड़ा और tough हो जाता है। जी। हमना ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि मैंने जो ज्वाइन किया थिएटर, वो आउट ऑफ माय पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। Can we hold that thought? Sure. We'll hold that thought. We'll come back to it because I Sure. just want to give a kind of an introduction to your body of work. जी बिल्कुल। तो आपने 3 फिल्में की जी 2023 में, which was Queen of My Dreams, जी One of a Kind, which is Vakri, which I've जी actually seen, and In Flames, which then was our official submission to the Oscars जी in 2023, जी। and it picked up a lot of recognition and Oh my God. acknowledgement at the theatre जो festival circuit है उस पे जिंदगी बदल दी उसने मेरी। उस फिल्म ने। It took me to Cannes, it took me to TIFF, it took me to Red Sea, where we Yes. won the main Golden Eustre Yes. in front of जो भी आपकी हॉलीवुड की celebrities बड़ी and बात Indian है। Pakistani also. Yeah. And it just opened new doors, not in terms of opportunity only, but जो expansion, the exposure, it gave me new dreams. Yeah. I'd actually started believing कि once you hit 40, आपको लगता है जिंदगी अब क्या रह गया, मतलब नहीं, थोड़ा we're changing that narrative now. Yes. हाँ. And I'm so thankful to Zarar Khan, my director. He believed in me, and during COVID he was writing the film, or he would call me, Zoom calls हम करते थे, और he'd tell me कि Bakhtawer, we are going to do this film. Yeah. Hang in there. Yeah. और मुझे And it's a tough film. जी बिल्कुल, और वीजाज नहीं थे, और ही इज कैनेडियन, और उनका आना जाना टीम का, बिकॉज इट्स कैनेडियन पाकिस्तान। मुझे कभी लगता था नहीं होगी कभी, लेकिन ट्रस्ट मी, जो 2020-21 का जो मुश्किल टाइम था, वो मैं इसलिए गुजार पाई क्योंकि जैसे जैसे उसके दूसरे ड्राफ्ट्स आते गए स्क्रिप्ट के, इट गॉट more interesting each draft and more to do for me. So इस पे भी हम वापस आएंगे। अब मैं माफी चाहती हूँ सब लोगों से जो ये बातें सुनना चाहते हैं, मगर हमने पहले प्री कैप करना है और फिर हम going to delve into one subject to the other. So In Flames हुई और फिर वक्री, 3 फिल्में आई। उसके बाद हमने आपको देखा कॉन्ट्रैक्टर्स में भी you had a role, but then Nadan was your main role, जिसमें मुझे लगता है कि एटलीस्ट टेलीविजन ऑडियंस जो थी उसने रिकग्नाइज किया कि ओके वाओ, दिस इज एन एक्टर हु नोज हर परफॉर्मेंस, एंड वो क्या कैरेक्टर था, बहुत अच्छा ज़बरदस्त तरीके से, somebody who was a woman who was oppressed and yet she had authority. So there was a whole arc to it. There was a whole arc to it, and it was a really interesting character. And I think the credit goes to Mehreen and Sultana Appa, and then Faria Afzal, उनकी first AD है. She is the one who connected me. वो Mehreen के साथ काम कर रही थी for contractors, और because she had worked with Iram Parveen with Vakri on Vakri, तो she knew me. किसी तरह से बनते हैं रास्ते, बन जाते, और
महरीन बहुत इस तरह की मज़ेदार डायरेक्टर हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा कोलैबोरेट करती हैं, वो आपको डायरेक्ट नहीं करती हैं सिर्फ, Absolutely, absolutely. और वो आपको फ्री हैंड देती हैं, और आप क्या सोचते हैं आपसे पूछती हैं. सो आई थिंक नादान का अगर क्रेडिट मैं देना चाहूँगी तो मुझसे ज़्यादा महरीन का, सुल्ताना आपा का, साजी कुल का, बिल्कुल फरिया का, नबील हमारे जो डीओपी थे, इन सब का है. सॉरी तो नबील उसमें नहीं थे, वो नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर में दूसरे थे. जी जी मगर जो एक oppressed yet conflicted character था जी in नादान, जी मुझे लगता है अब जो आपका ड्रामा है जी. उसमें भी एक oppressed yet लेकिन conflicted अलग है. character, लेकिन फर्क है. जी तो obviously बात जो है वो आएगी परवरिश पे जो आजकल जी चल रहा है, and जी we're really enjoying कि it's like a you know fresh air कि आपको एक फर्क कहानी मिल रही है, एक फर्क जनरेशन की कहानी मिल रही है, एक खिड़की खोली है लिखने वाले ने कि सिर्फ 20 समथिंग्स की लव स्टोरीज और सास बहू के मसले उनमें से निकल के अब तो खैर खानदानी जो दुश्मनियां उन पे ड्रामे बन रहे हैं, but this is हाँ a small फ्रेश. story हाँ with a big heart and with a big vision. मुझे आई लगता है एब्सोल्युटली लव द स्क्रिप्ट. love the script. तो परवरिश भी है. Now let's go back. Now चलें let's go back. चलें बात अब करते हैं. बात करते हैं, अब बात करते हैं, इतना सारा है, अब बात करते हैं. जी Theatre, you were married at that time. जी. एंड बड़ी इंटरेस्टिंग आपने उसकी भी डिटेल बताई, वो हम एक्सपोजर की जो बात करेंगे बट थिएटर आपने सोचा, क्यों ये ख्याल आया? मुझे नहीं आया ख्याल ये. नहीं आया? नहीं. नई नई माँ बनी थी मैं और पाकिस्तान मूव हुई थी, और आई वाज फाइंडिंग इट वेरी डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट. 5 साल के गैप के बाद एक जॉइंट फैमिली में और बच्ची के साथ, और मैं हमेशा से कुछ न कुछ जब लंदन में थे तो भी कुछ न कुछ करती रहती थी. पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतनी बेहतरीन थी कि इतना ज़्यादा आना जाना हर जगह था. पढ़ रही थी, मैंने मास्टर्स किया, फिर मैंने जॉब की किस वहाँ चीज़ पे, में मास्टर्स किया? मार्केटिंग कम्युनिकेशन में. Okay. जी. तो जब आप आके होम बाउंड हो जाते हैं एक बच्ची के साथ, तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं हेयर इन कराची. मैं शदीद, मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम का डिप्रेशन का शिकार थी, and my husband just didn't know what to do with me. I was quite handful. And Bakhtaar, can I ask you exactly what was postpartum depression? Because बहुत से लोग ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, जी बहुत से इस पे बात भी कर चुके हैं, but it's a very important conversation as well. बिल्कुल. What was it like? What was it? Basically, I think your hormones are all over, just like when you're perimenopausal या उससे पहले puberty के time पे भी, your body is going through such a big giant change in transition कि and then the world is expecting you to be all happy and with a rosy picture कि you're a new mother and you should be just in love with your baby, which is true, you do, but it doesn't happen overnight. One shouldn't expect from a woman कि बस वो उठेगी दूसरी सुबह जिस दिन बेबी हुआ है और वो एक माँ, वो जो हमारे यहाँ ग्लोरीफाई किया जाता है, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है. आपका बायोलॉजी आपकी अलग चीज़ है. So you have mood swings, you are depressed, you are unhappy, you are uncertain of your future, you do not, especially if it's your first child, कि इसके बाद क्या होगा. You're sleep deprived, you're not eating well, and your freedom जो भी आप कह सके, even to go and take a shower अपने टाइम से, that is taken away from you. बिल्कुल. You can't shower, you can't eat, you can't sleep. So अगर आपकी बेसिक चीज़ें बिल्कुल चेंज हो जाए ओवरनाइट, तो आपके चेंजेस तो आएंगे बॉडी में. फॉर्चुनेटली डॉक्टर्स टॉक अबाउट देम नाउ, बट मुझे लगता है जितनी बातचीत होनी चाहिए वो नहीं हो रही है. How old were you at that time? So in my mid-20s. Mid-20s. जी. And I was, I think with me it was not just having my first child, but also the fact that I moved from one place to the other. Right. And there I was doing so much, and here I did not have anything to look forward to each morning. Just being, again, लोग प्लीज मुझे गलत ना समझे कोई, माँ बनना बहुत ही ख़ास दर्जा है और बहुत बड़ी नेमत है. लेकिन एक औरत बहरहाल अपने कोर पे एक औरत ही रहती है, और उसकी ज़िंदगी में जब इतनी बड़ी तब्दीली आए तो उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है. और वो सपोर्ट सिर्फ फिजिकल नहीं होनी चाहिए, वो सपोर्ट इमोशनल भी होनी चाहिए. और बेचारे हस्बैंड्स जो ना वो किस हद तक दे सकते हैं.
उसके लिए ज़रूरी है कि हर औरत की ज़िंदगी में अपनी भी कुछ अचीवमेंट्स और अपनी भी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। वो शौक हो सकते हैं, वो दोस्तें हो सकती हैं, वो काम हो सकता है, अपनी अचीवमेंट्स, अपनी छोटी-छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो कि सुबह जब उठे तो कुछ लुक फॉरवर्ड करने के लिए हो, पर्पस हो। पर्पस